जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु महाराज जी। मैं संध्या वेले ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ, ਪਰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੌਗੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਔਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आज बहुत दिनों के बाद गुरु जी का हुक्म हुआ संगत जी शुक्राना करने का। आगे मैं कॉन्टीन्यूसली रेगुलर करती थी, फिर बीच में जैसे ब्रेक आई, मैं वेकेशन के लिए मम्मा के घर गई अमृतसर रहने के लिए। तो वहाँ पर मतलब ना प्रॉपर पाठ हो पाया, ना शुक्राना कर पाई। पता नहीं वहाँ पर तो एकदम से रूटीन ऐसी हो गई। शायद गुरु जी का हुक्म था तभी नहीं कर पाई। जब गुरु जी का हुक्म होता है तभी कर पाते हैं हम शुक्राना। संगत जी, मैं जो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आज 1 जुलाई है, और 1 जुलाई, ये जुलाई मंथ बहुत ब्लेस्ड मंथ है। गुरु जी का बर्थडे है इस मंथ में। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। और लास्ट वीक गुरु जी ने मुझे अमृतसर का ट्रिप ब्लेस किया। इस ट्रिप में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। जैसे पिछले 1 साल से गुरुजी ने मुझे अपने साथ डायरेक्ट वे में जोड़ा। कनेक्शन गुरुजी ने, मेरा और गुरुजी का कनेक्शन बना। और मेरे लिए मेरे गुरुजी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सभी से आगे, सभी रिश्तों में से आगे। और मैं वहाँ पर जाती हूँ अमृतसर अपने रिलेटिव्स के घर, और सभी अगेंस्ट, मतलब जैसे ना मैं इतना हो गई थी कि मैं स्टेटस डाल देती थी संगत जी डेली,
और वहाँ पर मुझे बहुत अब्यूज़, मुझे बहुत गलत बोला गया, मज़ाक उड़ाया गया मेरे गुरुजी के बारे में, क्योंकि अगर मैं कुछ बताती हूँ उनके बारे में तो उनको विश्वास नहीं होता। तो बहुत कुछ ऐसा मेरे सामने आया कि ठीक है, गुरुजी का हुक्म है, तो मुझे बहुत कुछ दिखने को मिला कि रिश्ते कैसे होते हैं। संगत जी, और गुरु पिता का लख लख शुक्राना करती हूँ। अपने मामू के घर गई, उन्होंने काफ़ी वो किया, और अपने ताया जी के घर गई, सबने मजाक बनाया मेरे गुरुजी का, बट मुझसे वो चीज़ टॉलरेट नहीं हुई। मैं बहुत रोई भी, और बहुत मतलब ऐसा कुछ हुआ। मासी के घर गई, वहाँ पर बहुत अच्छा रहा मेरा, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, और लोगों के असली चेहरे दिखाए गुरु पिता ने। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। गुरुजी को बहुत शॉपिंग करवा रहे हैं मुझे और मेरे बच्चों को। मैंने एक बहुत अच्छा लग्जरियस ब्रांडेड पर्स बाय किया, बहुत ही अच्छा। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता आपका। और ऐसे ही मेरा अमृतसर का ट्रिप रहा, रोई भी हंसी भी। मतलब अ, अगर आप सही रास्ते पे चल पड़े हो ना संगत जी, तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये मेरे को गुरुजी ने दिखाया। अपने ही होते हैं जिनको ये लगता है कि मैं रॉन्ग साइड पे चला गई हूँ, या मैं मुझे मेरे फ्रेंड्स भी मिले, उन्होंने भी मुझे बोला कि तू गलत जगह पे है, तू गलत राह पे तुर पड़ी है। अ, हमारे लिए, क्योंकि मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी है जो है। तो आई ऑल्सो रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी गुरुद्वारे जाती हूँ, गुरुद्वारे जाती थी, अब मैं मंदिर भी जाती हूँ। बट मुझे गुरुजी ने ये सिखाया है कि अगर तू सोचेगी कि तेरा भगवान तेरे अंदर है, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो मैं वहाँ पर गुरुजी का ध्यान ही करती हूँ संगत जी। क्योंकि गुरुजी मुझे हर तरफ मुझे दिखते हैं, हर तरफ मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है कि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। नॉनवेज छोड़ा, उस चीज़ को भी लोगों ने मजाक बनाया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला था, पुत्र जो मेरी मुट्ठी भर संगत होती है ना, वो नॉनवेज नहीं खाती। अगर ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ परमात्मा ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ करे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और कोई गल नहीं, मेरे गुरु जी ने मैंने कहा, पुत्र आने वाला टाइम तेरा बहुत वधिया है, बहुत नाम इज्जत मिलनी है तेनों, और तेरा गुरु तेनों दुआऊगा, और तू गुरु दी बेटी के नाम ते तेरा नाम चलेगा कि एक गुरुपा दी बेटी है। शुकराना मेरे गुरु पिता, शुकराना। गुरु पिता कहते तू मेहनत कर, कड़ी मेहनत कर, तेनों तेरी ड्रीम जॉब ब्लेस करूँगा मैं बहुत वधिया जॉब तेनों देनी है। शुकराना मेरे गुरु पिता, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुकराना। तुहाडा लख लख शुकराना मेरे गुरु पिता, लख लख शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना मेरी माँ की तरफ से है। संगत जी, पहले उनकी रिपोर्ट, उनका पूरा एमआरआई हुआ था, जांच हुई थी उनकी। तो पहली रिपोर्ट में उनकी आया था कि उनकी हड्डी में गैप है उनके। हाँ संगत जी, ऐसे कुछ था, हड्डी में गैप है उनके बैक की। और संगत जी आया था कि उनके पैरों में सूजन है। तो संगत जी, आज जब वो दूसरे डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गई, एक्चुअल में जिन्होंने रिपोर्ट कराने के लिए बोला तो उन्हीं के पास गई, जो कल रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ पे कराया था। तो वो जहाँ पे कराया था तो वहाँ पे किसी डॉक्टर ने बताया था, तो आज वहाँ गई थी जहाँ जिन्होंने रिपोर्ट लिख के दी थी कि आपको रिपोर्ट करानी है। तो उन मेन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी, आपके बैक में मतलब हड्डी में गैप नहीं है, आपका बस हड्डी बढ़ी हुई है। संगत जी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, हड्डी या मांस कुछ उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ है। बाकी सब ठीक है, आपको थोड़ा सा इलाज होगा, बाकी आगे सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि इसमें गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है, मुझे कुछ नहीं पता कि पहले डॉक्टर ने बताया कि
हड्डी में गैप है और फिर बताया कि नहीं गैप नहीं है, बस हड्डी बड़ी है। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में काट दिया संगत जी। तो मैं इस चीज़ का तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का अपनी माँ की तरफ से। संगत जी एक और शुक्राना है मेरी माँ का, ये आज मुझे गुरुजी ने मेरी माँ से रिलेटेड बहुत बड़ा ड्रीम दर्शन दिया, और वो ड्रीम दर्शन बुरा इसीलिए दिया ताकि वो हकीकत में ना घट सके। गुरुजी ने मेरी माँ के कष्टों को आज स्वप्न में ही दिखा के कटा दिया। तो मैं इसका तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो जो चीज़ आपने मुझे दिखाई मैं हकीकत में इमेजिन भी नहीं कर सकती, मेरी तो रूह काँप जाती है। तो आपने इतने बड़े कष्ट को कटवा दिया, तो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी माँ को ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरा एक और शुक्राना है, मुझे वीट एलर्जी थी, और जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी कुछ ऐसा खाती थी ना, तो संगत जी पहले तो सालों पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर कुछ समय से जब भी मैं खाती थी मुझे सांस फूलने लगती थी, और मतलब कुछ अजीब सा महसूस होता था, तबीयत मेरी बिगड़ने लगती थी। ऑलरेडी गुरुजी ने मेरे शरीर में बहुत सारे रोगों के बारे में मुझे बता रखा था। अब वो किस वजह से होता मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर को तो मुझे दिखाना नहीं है संगत जी, मैंने सब अपना गुरुजी पे छोड़ रखा है। तो संगत जी जब भी मैं खाऊँ, यहाँ तक कि आटे की बनी कोई भी चीज़ खाऊँ, रोटी पूड़ी कुछ भी, तो उससे मेरी गड़बड़ होती थी तबीयत। तो संगत जी क्या खाऊँ फिर? चावल खाने को गुरुजी ने चीनी चावल तो खाने को मना किया है। संगत जी क्या खाएगा इंसान? तो कुछ भी कुछ ना कुछ बना के खा लेती थी संगत जी। जब कभी एक रोटी आधी रोटी खा लूँ तो थोड़ा बहुत तबीयत बिगड़ने लगती थी संगत जी। तो संगत जी आज गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही थी शाम में, और मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी पनीर की संगत जी। तो वो मेरे को तो पता था कि मेरे को तो सूट करेगी नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी बच गई थी, तो मैंने वो फ्रिज में लगा दी संगत जी। अब और संगत जी 2 रोटी रखी थी, एक्स्ट्रा बन गई थी वो भी। तो संगत जी मैंने कहा था ये कल मैं मतलब ये जो एक्स्ट्रा रोटी बच गई तो मैं मतलब किसी जानवर को दे दूँगी, वरना फिर मेरे को तो खानी ही नहीं है, क्योंकि वो सूट नहीं करेगी। और मेरे हस्बैंड अंकल लंच करके जा चुके थे, अब रात में तो वो खाते नहीं, क्योंकि वो रात में थोड़ा सा खाना उन्होंने कुछ दिन से बंद कर रखा है, क्योंकि उनको डाइजेशन में दिक्कत होती है। तो संगत जी फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैंने उसे लगा दी है फ्रिज में। अब संगत जी अभी कुछ देर पहले जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने मुझे तुरंत टेलीपैथी करी कि अभी उठ और वो जो रोटी सब्जी रखी उसे खा। मैंने कहा अरे मुझे तो नुकसान कर जाएगा, फिर गुरुजी की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी। संगत जी मैं उठी, मैंने उन दोनों को खाया। संगत जी अभी खाए मुझे, मैं क्या बताऊँ, 1-2 घंटे हो रहे हैं संगत जी, मुझे कोई बॉडी में दिक्कत नहीं हुई है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं हो संगत जी। जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे उस सत्संग में नहीं पता, सत्संग सुनते-सुनते मैं खा रही थी, मोबाइल मैंने सामने ऐसे रख दिया था, मैं खा रही थी गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने। संगत जी मुझे सच, और उस सत्संग में आगे क्या होने वाला है, वो क्या आंटी जी बोलने वाली मुझे नहीं पता था। जब मैंने वो पूरी रोटी खा ली, थोड़ी सी लास्ट में बची थी रोटी, तब उस सत्संग में आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने कैसे उनको वीट से एलर्जी थी, उस एलर्जी को गुरुजी ने उनकी समाप्त किया। तो मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी ने आज से मेरी वीट एलर्जी, जो मुझे वीट खाने से एलर्जी हो रही है, जो मुझे दिक्कत हो रही है, उसको गुरुजी ने आज से समाप्त कर दिया है, और आज से मैं आटे का सेवन कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और पनीर भी मुझे डाइजेस्ट हो रहा है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होगी उसे खाने में। तो गुरुजी ने मेरी कोई बहुत बुरे बीमारी को सत्संग सुनवा के कटवा दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ये जुलाई का पहला महीना है, और जुलाई के पहले ही दिन आपने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मैं ढंग से खाना भी नहीं कई दिन से खा पा रही थी, पर आपकी कृपा से अब मैं रोटी खा पाऊँगी। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। कल रात को संगत जी, एक्चुअल में कल दोपहर के 3 बजे से घर में लाइट नहीं थी, और पूरी रात लाइट नहीं थी संगत जी। जो लाइट जहाँ से ठीक हो रही थी, सुनने में आ रहा था कि वो भी जो बिजली घर से मतलब ट्रांसफार्मर पता नहीं क्या, कोई जो भी चीज़ हो, तो वो बार-बार ब्लास्ट हो रही थी संगत जी। तो वो ठीक करते फिर ब्लास्ट हो जाए, तो अब संगत जी बहुत परेशानी। और जो इन्वर्टर है ना संगत जी, उसकी भी बैटरी ख़त्म हो गई, क्योंकि 3 बजे से संगत जी मेरे इन-लॉज़ ने तो किराएदार भी रखे हैं, तो उन लोगों ने भी कुछ बिजली यूज़ की, और इन-लॉज़ सब लोग तो यूज़ करते ही हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी यूज़ की संगत जी। तो पंखा तो चलाना ही है ना संगत जी। तो अब वो ख़त्म हो गया दोपहर के 3 बजे से संगत जी, रात तक वो फिनिश हो गया। 9 बजे तक इन्वर्टर ख़त्म हो गया संगत जी। अब संगत जी गर्मी
तो थोड़ी-सी बैलेंस थी क्योंकि बारिश हो रखी थी। लेकिन संगत जी मच्छर बहुत ज़्यादा थे और मच्छर बहुत दिक्कत हो रही थी संगत जी। तो अब क्या किया जाए? और मच्छर भगाने वाला कोई प्रबंध उस वक़्त रात में नहीं था संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल आए थे 11:30 12 बजे के करीब संगत जी। और उस वक़्त कहाँ से सब कुछ आए और बारिश की वजह से इतना, और बारिश में सब जगह इतना मतलब पानी भरा था संगत जी की बड़े मुश्किल से तो वो घर आए बाइक चला के। और पूरे इलाके में, पूरे कॉलोनी में दूर दूर तक अंधेरा था संगत जी को, कई कई जगह से लाइट नहीं आ रही थी संगत जी। तो अब बहुत परेशानी, कैसे रात निकले? तो संगत जी गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी महाराज लाइट कब आएगी? तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा मतलब 1-2 घंटे में तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। संगत जी मैंने 12 बजे गुरुजी से ये बात पूछी थी। तो संगत जी तो मैं समझ गई कि 1-2 घंटे में लाइट आ जाएगी। दूसरी चीज़ संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि अभी जो तुझे तकलीफ़ हो रही है ना, तो ये तकलीफ़ दे कर के गर्मी में की तकलीफ़ जो है ना, ये बहुत छोटी चीज़ है। मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट अभी छोटे में कटवा रहा हूँ। तो भी मैं समझ गई क्योंकि संगत जी लाइट आई है रात के 2 बजे, जैसे कि गुरुजी ने कहा 1-2 घंटे में लाइट आ जाएगी, तो 2 बजे करेक्ट लाइट आ गई संगत जी। लेकिन संगत जी जो गुरुजी ने बोला ना मैं कष्ट कटवा रही, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा संगत जी। क्योंकि काफ़ी दिन नहीं, मैं कहूँगी कुछ दिन पहले एक बार गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, तो उसमें बताया था कि रात के 2 बजे तक भारी है, रात का 2 बजे का समय निकल गया तो संकट टल जाएगा। तो संगत जी उस वक्त मैंने लगातार खूब सत्संग सुने थे और मैंने कल भी सत्संग सुने थे, ऐसा नहीं है। लेकिन संगत जी शायद कष्ट बहुत बड़ा था, मुझे नहीं पता। और मैंने कल के सत्संग में बताया भी था कि कल कैसे गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे में भेजा और लंगर भी खिलाया और कैसे मुझे ब्लेस किया था। और संगत जी कल रात को लाइट भी नहीं थी, तो मैं समझ गई फिर कि कोई बहुत, और फिर 2 बजे लाइट आई करेक्ट। तो मैं समझ गई 2 बजे तक कोई कष्ट आ था मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, जिसको गुरुजी ने गर्मी और मच्छर ये सब तरीके से ही कटवा दिया। तो मैं बहुत छोटे में कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा के, सत्संग शेयर करवा के और स्वप्न दर्शन दे करके, स्वप्न में कष्ट कटवा, हर स्वप्न के माध्यम से भी हर तरीके से छोटे छोटे रूपों में कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने घर में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी ना वो सब बाहर निकलवा दे। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि अपनी अलमारी चेक कर, उसमें भी कोई चीज़ रह गई है। अब संगत जी आज मैं ना सत्संग शेयर करके अपनी अलमारी चेक करूँगी और फिर मैं नेक्स्ट सत्संग में बताऊँगी कि अगर उसमें कोई सामान क्या निकला, क्या नहीं, क्या नेगेटिव चीज़ गुरुजी ने निकलवाई है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे मंदिर में एक चीज़ नेगेटिविटी की वजह से ना मैं तुझे ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में कहा कि एक रुमाल है जिससे तू मेरे स्वरूप को, मंदिर को पूछती है, पर उससे नेक्स्ट डे वॉश नहीं करती है। हाँ संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल पूछ देते थे और नेक्स्ट डे तो नहीं, 2-3 दिन में वॉश कर देती थी, लेकिन गुरुजी का तो कहना है कि नहीं, अगले दिन तुरंत वॉश होना चाहिए। तो फिर मैंने वो आज से करना चालू कर दिया। तो अब वो सत्संग मुझे नहीं आ रहा है, गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंत लख 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 बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे मुझे बनाए रखना, अपना साथ, अपना हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी महाराज जो गलतियों भूल चूक को क्षमा करना। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी गुरुजी ने मुझे अभी एक और ब्लेसिंग दी। मैंने 2-3 चूड़ियाँ ऐसी हाथों में डाल रखी थी, तभी गुरुजी की फिर से मुझे स्ट्रंग टेलीपैथी हुई और गुरुजी ने कहा कि अपनी चूड़ियाँ चेंज कर दे। तो संगत जी पिंक कलर की और एक येलो कलर की 2 चूड़ियाँ रखी हुई थी संगत जी। तो मैंने ना मिक्स करके अभी इस वक्त रात के समय, मतलब अभी रात के 10 बज के 17 मिनट हुआ है और अभी गुरुजी ने टेलीपैथी करी कि अभी बदल पहन। तो मैंने संगत जी भी पहन ली है। पता नहीं क्या गुरुजी मुझे इस वक्त इतनी रात को येलो और पिंक कलर की चूड़ियाँ पहना के मुझे कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी, पर मैंने पहन लिया है। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने चूड़ियाँ चेंज करवा दी है, तो अब ना पूरी तरीके से सेहत भी ठीक कर दो, जो बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा रंग दब चुका है, ब्लैक मैजिक की वजह से उसे भी ठीक कर दो, पूरी तरीके से सुंदर बना दो गुरुजी। जो रंग रूप था मेरा उसे वापस लौटा दो गुरुजी, मैंने यही अरदास करी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रही गुरुजी। जो ब्लैक मैजिक से खोया है वही मांग रही हूँ गुरुजी। तो ताकि ये चूड़ियाँ भी, ये रंग, ये चीज़ें भी मुझ पे अच्छी लगें, बस यही मेरी अरदास है। बाकी गुरुजी ने अगर मुझे भी पहनाया है इतनी रात गए, तो गुरुजी मुझे कोई ब्लेसिंग देना चाहते होंगे सुहाग से रिलेटेड, तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देने का, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेसिंग देने का, मेरे पेरेंट्स को ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज मेरे फादर के दांतों में काफ़ी
पेन था, तो वो भी दाँत उखड़वाने गए थे, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उनका भी कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने दाँत निकलवा के कटवा दिया है। इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। बड़े-बड़े रोगों को छोटे में कटवाने का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज ना गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन दिए हैं, और आज इस वक्त इतनी रात गए एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर घूम रही है संगत जी। जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी अभी 10:30 बजने को है, और छोटी सी बटरफ्लाई मेरे घर में घूम रही है। ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए, मुझे पता है कोई कष्ट होगा जो काटने के लिए गुरुजी आए हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर पलंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं असम से गुरुपा की प्यारी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी और मेरी गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। शुक्राना सत्संग तो काफ़ी सारे हैं संगत जी, और मैं ना 2-3 दिन से अच्छे से शुक्राना सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। पता नहीं क्यों संगत जी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि अ, लड़का के हॉस्टल में आना-जाना चल रहा है संगत जी, दिन भर लग जाता है। तो इसी वजह से मैं नहीं सुन पा रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बहुत सारे शुक्राना सत्संग सुनने के लिए पेंडिंग हो रखा है। मैंने ऐसे मोबाइल में यूट्यूब में ऐसे मतलब वो करके रखा है, सेव करके रखा है। मैं नहीं सुन पा रही हूँ, सुन लूँगी। संगत जी, कल कल क्या हुआ संगत जी, हम हस्बैंड वाइफ और मेरा लड़का हॉस्टल बाबू को छोड़ने जा रहे थे। तो संगत जी, मेरा हस्बैंड, हमने नया मकान शुरू कर दिया है संगत जी। आधा तो हो ही गया, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है अभी भी। तो नया मकान में मेरा हस्बैंड ऐसे दरवाज़ा खोल के मेरे पास सार दोगी है। हस्बैंड बोल रहे हैं कि नया घर में इसको छत के ऊपर थोड़ा-सा टहलने देती हूँ, ऐसे करके दरवाज़ा खोलने गया। पता नहीं कहाँ से संगत जी एक चिड़िया मरा हुआ है। डॉगी तो नहीं लाया संगत जी, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, चारों तरफ बाउंड्री लगा रखा है। तो संगत जी कहाँ से आया, क्यों आया, पता नहीं। गुरुपा बोलते मेरे ऊपर ले लूँगी, ऐसे करके कुछ ऐसे संकट काट लिया होगा मेरे गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। और जो सीरिया के रूप में मेरे घर का कष्ट काट लिया है, उसको भी मेरे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं नहीं आसान चुका पाऊँगी। सु मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी हमारे बुरी कर्म की वजह से गुरुपा कितने जानवर और वो चिड़िया बटरफ्लाई के उसमें कटवा रहे हैं, उसके लिए मैं सभी जीव जंतु से माफ़ी मांगूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। और जो भी मतलब जैसे चिड़िया हो, बटरफ्लाई हो, कुछ न कुछ कीड़े वगैरह हो, अगर हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके उम, डेथ हो गए, तो आप लोगों को गुरुपाम अच्छी जगह मतलब अच्छे जगह रखे। कृपा आप आपकी शरणों में रख लीजिएगा इन आत्माओं को, और हमें माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और संगत जी, मेरा लौकिक स्वरूप पता नहीं मुझे याद आ रहा है, मतलब बहुत याद आते हैं। जो लौकिक स्वरूप रेड कलर का, इतना सुंदर सा स्माइल, गुरुपा गुरुपा की, पता नहीं गुरुपा कहाँ गए। जो अगर जिसके पास गए तो आपको पता नहीं कैसे रखेंगे, आपका मूल्य ही नहीं जानते गुरुपा। अ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मैं अच्छे से नहीं रख पाई हूँ। मेरे गले से पता नहीं किस टाइम उतर गया, मुझे पता ही नहीं गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे मायके परिवार में भी आपको पता ही है क्या चल रहा है, कितनी बार बोलूँ है ना गुरुपा, आप सब ठीक कर दीजिएगा मेरे गुरुजी।
मेरे पापा का काम बना दीजिए, उद्धार कीजिए मेरे घर को और मेरे बड़े भाई को, मेरे भाई को ब्लेस कीजिए मेरे गुरुजी। छोटा भाई तो बहुत वो है, मतलब मेरी छोटी भाभी बहुत अच्छी है, चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन बड़ी भाभी तंत्र मंत्र करके मेरे भाई को मारना चाहते हैं संगत जी। और मेरे पूरा परिवार पे तंत्र क्रिया कर रहे, पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है भाभी। मेरे भाभी को सद्बुद्धि दीजिए और हमारे घर के लिए अगर अच्छा नहीं है तो भाभी को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिएगा गुरुजी। और जो गुरुजी हम लोगों के साथ मेरी ससुराल पक्ष से भी आज भी मुझे चेहरा दिखा दिया गुरुजी, स्पष्ट। मेरे सासी सास, मेरे दो सास है संगत जी। बड़ी वाली सास तो ख़त्म हो गया, ससुर और सास, लेकिन छोटी वाली सास है, सासी सास। तो संगत जी आज भी मेरे बाबू के लिए कुछ कर रहे से, हाँ ये अच्छा ये बाबू का है, ऐसे करके उठा रहे थे, एक सुई और एक बटन ऐसे उठा रहे थे संगत जी। मेरे घर से मेरे बाबू का ऐसे ऐसे दिखाया है गुरुपा ने। और मेरे ननद, जीजा जी, भांजी, इन सबको भी दिखाया दे। और कभी अ, इन लोगों को आप बताते हो ना गुरुपा, मुझे नहीं कुछ बोलना। हाँ, बोल भी क्या क्या ही बोलूँ, है ना गुरुजी। तो अ, गुरुपा, अगर हम ऐसे ही ज़िंदगी जिए तो कैसे अच्छा होगा गुरुपा। जीते जी गुरुपा हमें थोड़ी-सी अ, सुख शांति दीजिए मेरे गुरुजी। कितने दिन इंसान तो कितने दिन जीता है ना गुरुपा। अगर आपने हाथ पकड़ा है तो थोड़ी-सी खुशी से जिऊँ और खुशी से आपके शरणों में ले जाइएगा हमें गुरुजी। और क्या है गुरुपा, ज़्यादा नहीं सही है, क्योंकि अ, मैं इतनी लालची भी नहीं हूँ धन दौलत की। थोड़ी-सी अच्छी-सी मतलब सुख शांति से जीना चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा, इन लोगों को आप बताते हो मुझे कुछ नहीं बोलना, आप ही करोगे जो करोगे। हाँ, ये तो पता ही है गुरुपा, आप ही करोगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप तो देवों देव हो मेरे गुरुजी। तो और मेरे माँ काली और बंगलामुखी माँ, आप लोगों की नाम ले लेके ये लोग इतनी गलत काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों इन लोगों के साथ दे रहे हो? और मेरे गुरुपा, आप बताते हो कि उल्टा बार कर दिया है, कहाँ से बार हो गया गुरुजी? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा बार हो गया तो तो आप दिखा दीजिए उल्टा बार कैसे हो गया? हमारे साथ अ, जो मरण क्रिया, अगर जो इतनी गंदी-गंदी क्रिया करके भेजी है, हमारे हस्बैंड को भी कितनी वो कर दिया है, मेरे हस्बैंड को। आप मेरे हस्बैंड को स्वस्थ कीजिए जल्दी-जल्दी। और उल्टा वर्क कैसे होते हैं, डबल ट्रिपल करके मुझे दिखाइए गुरुपा। मैं आपकी बेटी देखना चाहती हूँ, अगर हमें जो ब्लैक मैजिक करे आप दिखाइए। आपका ताकत दिखा दीजिए इस दुनिया को। आप दिखा दीजिएगा गुरुपा, हारने मत दीजिएगा मुझे। आपका जितनी वो है वो इन लोगों के पास भेज दीजिए गुरुपा। हमें अगर मारने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रिपल डबल जितना हो सके आप दिखाइए हमें। तो यही अरदास है मेरे गुरुजी। और शुक्राना भी है जो मैं आज बोल पा रही हूँ, आपकी वजह से बोल पा रही हूँ गुरुपा, नहीं तो मेरा कब सास सास रुक गए थे मेरे गुरुजी। आपको तो मैं एहसान नहीं चुका पाऊँगी मेरे गुरुजी, सारा ज़िंदगी जीऊँ फिर भी नहीं चुका पाऊँगी। शुक्राना गुरुजी, जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठ जाती हूँ संगत जी, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, कल भी सोच ही रही थी मंदिर से बटरफ्लाई निकली, तो कैसा लगेगा संगत जी? बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, सुन रहे हैं मेरे बात, ये मुझे एहसास दिलाती है, उसके लिए भी शुक्राना। और अभी भी संगत जी मेरे मुँह मेरे माथा के ऊपर से घूम रहे हैं संगत जी एक बटरफ्लाई। और हाँ, इधर-उधर घूम रहे हैं संगत जी और एक जगह बैठ गए। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप मेरे शुक्राना सत्संग सुन रहे हो कृपा, इसके लिए भी शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो रहा है और
मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मैं देरी-देरी से कर पा रही हूँ। आप ही करवा रहे हो मुझे ऐसे देरी, मेरी बेटी को आराम दिला रहे हो ना गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। और मेरे सुहाग रक्षा करना मेरे गुरुजी, और मेरा एक एक ही बच्चा है, उसको भी रक्षा करना मेरे गुरुजी। पहले तो लाइफलेस, उसके बाद हेल्पलेस, ऐसे करके रखिएगा गुरुजी। आपकी आप आपकी हाथ हमेशा रखना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरा लड़का बहुत दूर ही रहता है, तो अंग-संग रहिएगा मेरे गुरुजी। और मेरा हस्बैंड अंकल भी 7 तारीख आपके बर्थडे के दिन ही ड्यूटी जॉइन करने जाएँगे बाबा। ये बहुत अ, वीक हो गया, तो आपको ही देखना मेरे गुरुजी, ताकत बना दीजिएगा। और जितनी भी शरीर में बीमारी है उसको भस्म करके आप स्वस्थ करके मेरा दिल और सबका दिल जीत लिए मेरे गुरुजी। सबको दिखाइए आपका ये चुटकियों का काम है मेरे गुरुजी। यही मेरे अरदास है, हर दिन हर क्षण आपसे यही अरदास करूँगी, और यही मेरा आशा है मेरे गुरुपा। अपनी बेटी का लाश रखिए मेरे गुरुजी। और ये शुक्राना सत्संग जो मेरे संगत परिवार तक पहुँचा रहे हैं, इन आंटी अंकल को भी हमेशा, आंटी अंकल के परिवार, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सबको अच्छे से रखिएगा मेरे गुरुजी। और जितनी भी घर-घर में पहुँचेंगे ये शुक्राना सत्संग, सबका बच्चा, सबका सबका हस्बैंड लंबी उम्र दे, स्वस्थ है, सबको ब्लेस कीजिए। हमारे परिवार में जितनी भी संगत परिवार है सबको ब्लेस कीजिए, यही मेरी अरदास है। और आज के लिए यही बोलूँगी मेरे गुरुजी। और सभी देवी देवता से मैं यही प्रार्थना करूँगी, सबको अच्छे से रखिएगा। मेरी 33 कोटि देव देवता आप लोगों से यही मांगती हूँ मेरे गुरुजी। लव यू गुरुपा। मैं आज से यही बोलूँगी, और अगला शुक्राना सत्संग की भी तैयारी करूँगी, और आपका पवन मंत्र से मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे महाशिव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हों मुझे माफ़ करना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा नवरात्रि का है। गुरुजी ने मुझे माता रानी की सेवा दी। 2 बार से माता रानी की वो मुझसे अखंड जोत जगवाते हैं। गुरुपा मुझे माता रानी की सेवा देते हैं। पिछली बार जब मैंने अखंड जोत जगाई तो माता रानी ने मुझे शेर के रूप में दर्शन दिए, और इस बार जब मैंने माता रानी की जोत जगाई तो माता रानी ने मुझे अपने बैल के दर्शन कराए। माँ शैलपुत्री के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। पहले दिन जोत जगाने के बाद मंथली सत्संग था। मैं मंथली सत्संग में गई, वहाँ पे भी मुझे माता रानी ने अपने बैल के दर्शन कराए। माँ शैलपुत्री के रूप में मेरे घर आई। शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं इस बार कौन सा बड़ा कष्ट था जो माता रानी और गुरु महाराज अपने ऊपर ले रहे थे। जोत जगाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जोत बड़ी मुश्किल से उठती थी, बार बार ऐसा लगता था खंडित ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से मैं जोत उठा पा रही थी। मुझे गुरुजी ने और माता रानी ने दिखाया भी कि बड़ा कष्ट है। मैं काम करके जैसे लेट जाती तो तभी मुझे सपना आता कि मैं अब जोत जगा रही हूँ, जोत जग ही नहीं रही है। बार बार मैं जोत जगा रही हूँ, बार बार जोत बुझ रही है। एक दिन ये सपना आया, फिर 2-3 दिन बाद फिर दोबारा से यही सपना आया। मैं जोत जगा रही हूँ, जोत जग ही नहीं रही है, बार बार जोत बुझ रही है। मेरे ऊपर कोई बड़ा कष्ट था जो माता रानी अपनी जोत के रूप में ले रही थी। गुरुजी महाराज भी यही कहते हैं कि अगर हम जोत जगाते हुए कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या जोत बुझ जाती है तो वहम नहीं करना चाहिए। वो कोई बड़ा कष्ट होता है जो माता रानी अपने ऊपर ले लेती हैं, गुरु महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ इस बार। माता रानी ने मुझे बड़े प्यारे प्यारे दर्शन दिए, जोत के रूप में भी दर्शन दिए। पहले ही दिन माता रानी ने
नैना देवी के रूप में दर्शन दिए। माता रानी की जोत में बड़े प्यारे प्यारे 2 आँखें बन गई। बहुत सारे दर्शन दिए मुझे माता रानी ने। अनंतम शुक्राना माता रानी। अष्टमी पूजन के दिन इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं आईं जिन्होंने भोग प्रसाद ग्रहण किया। माता रानी का, गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज और सत्संग भी आया था कि माता रानी घर आएंगी, ब्लेस करेंगी। मैं भी माता रानी के साथ घर आऊँगा। शुक्राना गुरुजी। जब कंजका पूजन हो गया, खाना वाना खा के उसके बाद मैं लेट गई। फिर से मुझे सपना आया कि मैंने देखा माता रानी घर आई हैं। माता रानी के साथ और भी कई सारी कन्याएं हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं हम यहाँ। मैंने देखा नीचे हमारे मकान मालिक के यहाँ पे वो नीचे खड़ी हैं और सारी कन्याएं वहीं खड़ी हैं, बस माता रानी ऊपर आई हैं। और वो एक संगत हैं मोनिका आंटी, उनके मैं सत्संग सुनती हूँ। वो बहुत कनेक्ट हैं गुरुजी से, बहुत प्यारी बेटी हैं गुरुजी की। मैं जैसे ही वो ऊपर आई, मैंने उनको पूछा कि आप कौन हैं, तो माता रानी ने अपना नाम बताया, मैं मोनिका हूँ। मोनिका नाम बताया माता रानी ने, मैं मोनिका हूँ। मैंने कहा अच्छा बैठ जाओ, तो हंसने लगी। फिर मैंने कहा आओ चलो दूसरे रूम में चलते हैं, इधर मेरे हस्बैंड हैं। तो मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता है उनके घर वाले क्या क्या करते हैं, तो इसलिए क्योंकि मेरी बात नहीं मानते, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कुछ भी। वो तो गुरु महाराज जाने उनको कब सच दिखाना है नहीं दिखाना है। मैंने बोला आओ दूसरे रूम में चलते हैं। जिस रूम में मेरा पूजा घर है उसी रूम में मैंने माता रानी को बुला लिया। माता रानी आ गई मेरे पास और मुझसे पूछने लगी क्या हुआ। मैंने पता नहीं सपने में ही कहा माता रानी, मैंने कहा ब्लैक मैजिक हुआ है। माता रानी मुस्कुरा के बोली अच्छा किसने किया है। तो मैंने कहा पता नहीं किसने किया है। मैंने कहा मेरे ससुराल में से किया है, पर मुझे पता नहीं सही किसने किया है। तो मैंने माता रानी को बोला आप रुको, बैठते हैं बात करते हैं, बाद में चले जाना। माता रानी ने कहा नहीं मैं अब चलती हूँ, बाद में फिर आऊँगी। और माता रानी चली गई। मैंने माता रानी का जो सुंदर रूप देखा, पहली बार मैंने माता रानी का वैसा रूप देखा। इतनी पतली माता रानी, लंबी पतली सुंदर, और माता रानी के फेस पे नाक के पास ब्लैक निशान। उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया, बाद में मुझे पता लगा ये तो माता रानी आके मुझे दर्शन दे के ब्लेस करके गई हैं। पूछ के गई माता रानी क्या परेशानी है, और मेरे मुंह से भी देख लो यही बात निकली, ब्लैक मैजिक हुआ है। क्योंकि भगवान वही सब हमसे बुलवाते हैं जो सच होता है। नींद में भी गुरुजी ने और माता रानी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी हैं। तब से गुरुजी और माता रानी लगातार इतना ब्लैक मैजिक काट रहे हैं, हर दिन हमें बचा रहे हैं, हर दिन हमें ज़िंदगी ब्लेस करते हैं गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी। माता रानी भी साथ में, हनुमान जी भी बहुत बहुत हेल्प करते हैं। हनुमान जी भी, पंचमुखी हनुमान जी के रूप में गुरुजी ने हनुमान जी की ब्लेसिंग दी है। क्या क्या शुक्राने बताऊं, बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं। इतने ड्रीम दर्शन हैं, इतनी ब्लेसिंग है, मैं भूल भी गई हूँ। अब तो गुरु महाराज जी मुझे बहुत सारे सत्संग याद ही नहीं रहने देते, ड्रीम दर्शन याद ही नहीं रहने देते। जो उनको लगता है याद रहना है वो याद रखती हूँ मैं, वरना भूल जाती हूँ सारे। इतने कष्ट काटते हैं हर रोज़, बच्चों के कष्ट, हस्बैंड के कष्ट, और मेरे ऊपर तो बहुत कष्ट डाले गए थे कि ये तो बस किस तरह बचे ही ना, मर जाए। पर कहते हैं ना जिसको रखने वाला ऊपर वाला है उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। एक ड्रीम दर्शन और बताती हूँ मैं, वो भी काफ़ी पहले का है, कई मंथ हो गए। मैंने देखा कि 2 छत हैं, उनमें से एक छत पे एक भेड़ है। वो भेड़ इस तरह तड़प रही है, इधर से उधर इधर से उधर, पता नहीं उसको क्या हुआ है, बड़ी तड़प रही है वो भेड़। और मैं बार बार वहाँ से निकल रही हूँ, उसको देख रही हूँ अभी ये ठीक हुई है या नहीं हुई है। मैंने कहा क्या करूँ, मैं कर भी क्या सकती हूँ, इतना तड़प रही है वो। और वहीं पास में सटी हुई 2 छत हैं, 3 गाय माता खड़ी हैं पास में ही, वहीं 3 गाय माता खड़ी हैं और वो देख रही हैं उस भेड़ को तड़पते हुए। वो बहुत ज़्यादा वो भेड़ तड़प रही है।
ये ड्रीम दर्शन आया था मुझे। फिर गुरुजी ने बताया तेरा बड़ा कष्ट टाल दिया। वो भेड़ के रूप में मेरा कष्ट टाल दिया। ये ब्लैक मैजिक किया गया था मुझे तड़पाने के लिए। गुरुजी ने दिखाया, देख किस तरह तड़पाना था तुझे, तेरा बड़ा कष्ट टाल दिया। गाय माता की सेवा दी हुई है मुझे गुरुजी महाराज ने। रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, जब जब गुरुजी कराते हैं तब तब मैं कर लेती हूँ। गाय माता ने आके वहाँ मुझे ब्लेसिंग दी। कितनी ब्लेसिंग देते हैं मुझे गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। हमें वहम नहीं करना, पाठ करना है, सेवा करनी है, गुरुजी पे विश्वास रखना है। कई बार मेरा विश्वास भी डोल जाता है। ये परेशानियाँ कम नहीं होती, सहते सहते थक जाते हैं तो विश्वास डोलने लगता है। गुरुजी कहते हैं विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। शायद हमारे ही कोई किसी जन्म के कर्म रहे होंगे जो हम काट रहे हैं। संगत जी, मेरी सासू माता मुझ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करती हैं। सब मिले हुए हैं, पता नहीं उनको क्यों मुझसे इतनी चिढ़ है। मैंने कभी उनका दिल भी नहीं दुखाया, कभी उनको किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं किया। जब जब वो बीमार हुई हैं मैं तब तब गई हूँ। जितनी सेवा मुझसे गुरु महाराज ने कराई है वो भी मैंने की है। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई क्यों मुझसे चिढ़ते हैं सब। कभी किसी से लड़ना भी नहीं चाहती, मैं लड़ती भी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। ये अंदर से ही शायद, या कहा जाए कि कुछ जन्मों की कहानियाँ होती हैं। कोई अपना बन के दुश्मन निकल जाता है, कोई गैर भी अपना मिल जाता है, कोई अपनों के रूप में भी दुश्मन मिल जाता है। अब क्या कहें, मेरे हस्बैंड को तो कुछ पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं जिन्हें वो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान की तरह मानते और पूजते हैं। अब माँ बाप हैं तो प्यार करना तो बनता है, पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। उनको क्या पता क्या क्या कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। जिस दिन इनको पता चलेगा, सोचती हूँ पता नहीं क्या बीतेगी इन पे। शायद इसीलिए गुरुजी महाराज इनको कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हमें तो गुरुजी ने संभाला हुआ है, हमारे घर को तो गुरुजी ही चला रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे सिर्फ पुराण की सेवा लेते हैं। वो कई बार मुझसे सिर्फ पुराण पढ़ा चुके हैं, कंटिन्यू पढ़ाते हैं, कंटिन्यू पढ़वाते हैं मुझसे। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सेवा लेते रहना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिन जिन बेटियों पे आपकी ब्लैक मैजिक हुआ है उन सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबके कष्टों को हरना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। जो लोग आपकी बेटी को परेशान करते हैं, नफरत करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुजी, उनका भी भला करना, सबका भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।